أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. فلما جاء سلیمان، فلما پھر جب، جاء سلیمان قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. قال اس نے کہا اتمدوننی، اتمدوننی کیا تم سب مدد کرتے ہو. اتمدوننی کیا تم سب مدد کرتے ہو میری، بمال مال کے ساتھ. فما آتانی اللہ تو جو دیا ہے مجھے اللہ نے، خیر بہتر، بہتر ہے، مما اس سے، آتاکم
جو اس نے دیا ہے تمہیں، کیا تم میری مدد کرتے ہو مار کے ساتھ؟ بس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم، بلکہ تم سب بہدیتکم، اپنے ہدیے کے ذریعے سے تفرحون، خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، تو واپس جا ان کی طرف، فلنأتینہم، بس ضرور بضرور ہم آئیں گے ان کے پاس، بجنود، لشکروں کے ساتھ، لا قبالہ، نہیں کوئی مقابلے کی طاقت، لہم ان کو، بہا ان کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ایسا لشکر کہ ان میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم نکال دیں گے انہیں، منہا اس سے، اذلتاً بے عزت کر کے، وہم صاغرون، اور وہ سب ذلیل ہوں گے، اور ہم سب نکالیں گے ان کو اس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں گے۔ قالا، کہا اس نے، یا ایو الملؤ، اے درباریو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یاتینی، کہ وہ لے کے آئے گا میرے پاس، بعرشہا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آ جائے، مسلمین، فرمانبردار بن کر۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاس لائے اس کے تخت کو، قبل اس کے کہ وہ آ جائے میرے پاس اطاعت گزار بن کے۔ قال عفریت، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، من الجن، جنوں میں سے، انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی اس کو، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اٹھے، من مقامک، اپنی جگہ سے۔ ایک سرکش جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس، قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے مقام سے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور بے شک میں اس پر، لقوی، بہت طاقت رکھنے والا ہوں، امین، اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، قال، کہا اس نے جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب میں سے، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس، بھی اس کو، قبل ان یرتد، اس سے پہلے کہ لوٹے، یعنی جب کہ، الے کا، آپ کی طرف، طرفک، آپ کی آنکھ، یعنی اس شخص کے پاس جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس، کے پاس لا دیتا ہوں وہ تخت، قبل اس کے کہ پلٹے آپ کی نگاہ آپ کی طرف، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فلما رآہ، پھر جب اس نے دیکھا اسے، مستقرا، رکھا ہوا، عنده، اپنے پاس، قال، کہا اس نے، ھذا، یہ، من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکر، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، مکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جس نے شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو بے شک صرف شکر کرتا ہے، لنفسہ ہی، اپنی جان کے لیے، اور وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی، تو بے شک میرا رب، غنی، بڑا بے پرواہ ہے، کریم، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ قال، قال، کہا، نکرو، تم سب صورت بدل دو، لہا، اس کے لیے، عرشہا، اس کے تخت کا، ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ راہ پاتی ہے، یعنی اسے پتہ چلتا ہے، رہنمائی پاتی ہے، ہم تکون، یا وہ ہے، من الذین، ان میں سے جو، لا یہتدون، ہدایت نہیں پاتے، راہ نہیں پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو لہا عرشہا، تبدیل کر دو اس بلقیس کے لیے اس کا تخت، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتی۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیلا، کہا گیا اسے، ہاکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہو، گویا یہ تو وہی ہے، وہ اوتینا، اور ہمیں دیا گیا تھا،
العلم علم من قبلها उससे पहले, वकुन्ना मुस्लिमीन और हम हैं सब फर्माबरदार. वसद्दहा और रोका उसे मा कानत ताबुदु जिसकी वो इबादत किया करती थी. कानत ताबुदु रोका उसे जिसकी वो इबादत किया करती थी. मिन दुनिल्लाह अल्लाह के अलावा. व इन्नहा और बेशक वो थी मिन कौमिन काफिरिन काफिर कौम में से. कील कहा गया लहा उससे उदखुली असरह तू दाखिल हो असरह महल में. असरह का माना क्या होता है? महल में. फलम्मा रात हो फिर जब उसने देखा उसे हसीबत हो उसने समझा. हसीबत हो उसने गुमान किया. लुज्जतन के गहरा पानी है. वकशफत और उसने कपड़ा उठाया. अन साक़ैहा अपनी दोनों पिंडलियों से. क़ाला कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्नहु बेशक वो सरहुन एक महल है एक फर्श है. मुमर्रदुन जड़ा हुआ है. मिन कवारीर शीशों से. क़ालत वो कहने लगी रब्बी ए मेरे रब इन्नी ज़लम तो बेशक मैंने जुल्म किया नफसी अपनी जान पर. वह असलम तो और मैं मुती हो गई फर्माबरदार बन गई मा सुलेमाना सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ लिल्लाहि अल्लाह के लिए. रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया है. अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे. तो कल के सबक में हमने पढ़ा था कि मलका सबा ने अपने दरबारियों से सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से मौसूल होने वाले ख़त का जिक्र किया और उनसे मशवरा किया कि हमें इस ख़त का कैसे जवाब देना चाहिए. तो उन सब ने कहा कि हमारे पास हर किस्म असलहा मौजूद है. बेहतरीन फ़ौज मौजूद है. अगर हम लड़ना चाहे तो हम पूरी तरह तैयार है. लेकिन फैसला आपके हाथ में है. आप जो जैसा चाहेंगे वैसा ही हम तामील करेंगे. उसके बाद मलका ने ये राय दायर की कि जब कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है तो उसकी ईंट से ईंट बजा देता है और जो बाइज्जत लोग हैं उनको जलील करके रख देता है. तो जंग करना ये कोई अच्छी बात नहीं है. इससे बचना चाहिए. बल्कि खुद ही मलका ने ये रास्ता निकाला कि मैं उनकी तरफ तहाइफ भेज के मालूम करती हूँ कि वो किस किस्म के लोग हैं क्या चाहते हैं. तो फिर उन्होंने एक कीमती तहाइफ को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा जिसमें जर और जवाहिरात के अलावा बहुत से लौंडी गुलाम भी थे जिन्हें बहरी रास्ते से रवाना किया गया. फलम्मा जा सुलेमान जब ये काफिला सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उससे पहले आप उन पर रौब और दबदबा जाहिर करने के लिए बहुत से इंतजाम कर चुके थे जिन्हें देख के काफिला के लोग अपने तहाइफ पे सख्त पशेमान हुए. हम ताहम वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो पहुंच गए. उनके तहाइफ देख के आपने फरमाया अला तुमिद्दूननी बिमाल क्या तुम लोग इस माल और दौलत के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो. हालांकि तुम्हें तो मालूम है कि मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल ये हाजत नहीं है. फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे बेहतर अता कर रखा है. तुमने रास्ते में देखा कि जिस सड़क से तुम गुजर के आए वो सोने की ईंटों की बनी हुई थी जिसमें मेरी मवेशी जो थे वो बोलो बरास करती हैं. तो मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ दुनिया का माल दिया है लेकिन मुझे इस माल के अलावा इल्म दीन शरीयत और नबूवत भी अता फरमाई है. तो मुझे जो कुछ अता किया गया है वो तुमसे बदरजहा बेहतर है. जहां तक फौज लश्कर और सामान्य ज़रब व हर्ब का ताल्लुक है तो मेरे पास न सिर्फ इंसानों की कसीर तादाद में फौज है बल्कि जिन्नात और परिंदों की लश्कर भी मेरे पास है. अल्लाह ताला ने तमाम जानवर मेरे ताबे कर दिए हैं. लिहाजा ना तो तुम माल में मुझसे ज्यादा हो और ना मैदान जंग में मेरा मुकाबला कर सकते हो. बल अन तुम बिहदियतकुम तफरहून बल्कि तुम लोग अपने तहाइफ के साथ खुश हो. इरजि इलैहिम वापस जाओ अपने भेजने वालों की तरफ. हमें इन तहाइफ की जरूरत नहीं है. हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग मुती हो के फर्माबरदार बन के हमारे पास चले आए.
अगर वो लोग ऐसा नहीं करते, फमा आतानी अल्लाहु खैरु मिम्मा आताकुम इरजिअ इलैहिम, आप उनके पास वापस चले जाएं। फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा, फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा, तो फिर हम जरूर ब जरूर सबा वालों की तरफ ऐसा लश्कर लाएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ताकत ही नहीं रखते होंगे। हम उन पे हमला आवर होंगे। वलनुखरिजन्नहुम बिहा वलनुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन व हुम सागिरून, और उन्हें उनके मुल्क से निकाल देंगे बेइज्जत करके, वहुम सागिरून, और वो जलील और ख्वार होके रह जाएंगे। उनकी सल्तनत भी छिन जाएगी, उनको कैदी भी बना लिया जाएगा। जब सभा का ये काफिला धमकी हमें पैगाम लेके अपने मुल्क वापस पहुंचा, तो मलका को सारे हालात से आगाह किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तहाइफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, वो तो सिर्फ इताअत चाहते हैं। मलका जो है वो अक्लमंद थी, फौरन बात की तह तक पहुंच गई। जंग जदल की बजाय इताअत गुजारी इख्तियार करने का फैसला कर दिया, तो उसने रवानगी की तारीख मुकर्रर कर दी और अपने दरबारियों के साथ शाम और फलस्तीन के सफर पर रवाना हो गई, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खुद हाजिर हो के अपनी इताअत गुजारी का यकीन दिला सके। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी और बातिनी कुव्वतों से नवाजा था। वही का सिलसिला भी जारी था। जो ही मक्का का काफिला सबा से रवाना हुआ, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी। जिस तरह आपने पहले काफिले वालों पे अपनी बर्दरी का इजहार किया था, इसी तरह खुद मलका के सामने भी इसका इजहार जरूरी समझा और उसका तरीका ये इख्तियार किया। क़ाल या अय्युहल मलअ, फरमाया ए मेरे दरबारियों, अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो लोग मुती हो के मेरे पास पहुंचे। मकसद ये था कि वो लोग जान ले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से माफौक़ल आदत कुव्वत भी रखते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तख्त बिल्कीस को उसके इताअत गुजार हो के आने से पहले लाना जरूरी था, क्योंकि उसके ईमान ले आने के बाद उसके किसी माल पे तसव्वुफ करना जायज नहीं था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह आसम मिन्नी मालहू व नफ्सह, जिस शख्स ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो अब उसका माल जान मेरी तरफ से महफूज हो गया। मद्द मुकाबिल की हैसियत से हरबी मद्द मुकाबिल जो है, उसकी हैसियत जो है हरबी काफिर की हो, तो उसके माल और जान में तसर्रुफ जायज़ है। इसीलिए जंग के दौरान हासिल होने वाली किसी ऐसी चीज को माल गनीमत कहते हैं, वो मुसलमानों के लिए जायज़ होती है। ऐसा माल या तो मुजाहिदीन में तकसीम होता है या फिर बैतुल माल में जमा होता है। अलबत्ता जब कोई शख्स कौम या कबीला इताअत गुजार बन जाता है, तो फिर उसकी मर्जी के बगैर उसके माल और जान में तसर्रुफ जायज़ नहीं होता। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अहले सबा के फर्माबरदार बनने से पहले बल्कीस का तख्त कौन लाएगा। आपके दरबार में इंसान और जिन्नात सब मौजूद थे। चुनांचे क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, एक सरकस जिन कहने लगा कि मैं वो तख्त ले आऊंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठ खड़े हों। मतलब ये था कि मैं दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त को हाजिर कर दूंगा। और साथ ये भी कहा, वही अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं इस काम के लिए ताकत भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। यानी वो तख्त बेआईन ही असली हालत में पेश कर दूंगा, रास्ते में उसमें उसकी किसी चीज में तसरुफ नहीं करूंगा। यहाँ पर जिन के लिए सरकश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है।
यहाँ जिन के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? सरकश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है कि जिन इंसानों के मुकाबले में ज्यादा लतीफ, ज्यादा ताकतवर है, तो इस एतबार से उसे सरकश कहा गया। मगर उस वक्त सारे जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। आपके सामने सरकशी करने या हुकूमतूली करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे रखा था कि अगर जिन्नों में से कोई भी आपसे सरताबी करे तो आप जो चाहें उसे सदा दे सकते हैं। चुनांचे जिन आपके मुकम्मल मुती थे, आपके हुक्म से बड़ी बड़ी इमारत तामीर करते थे, समंदर से बड़ी बड़ी चीजें निकालते थे, और हस्ब जरूरत धातों को डालने का काम भी करते थे। उसके अलावा भी बाज दीगर उमूर अंजाम देते थे जो आमतौर पे इंसानों की ताकत से बाहर होते हैं। आज के ज़माने में तो बड़े बड़े मशीन जो है वो ईजाद हो चुके हैं इन कामों के करने के लिए, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सारा काम जिन्नों से लेते थे। तो उनकी इस ताकत और जोरावरी की वजह से ही उस जिन को सरकश कहा गया, तो उसने दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त बल्कीस ले आने की पेशकश की। जिनकी इस पेशकश के बाद क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था कहा, अना आती कभी कबल यरतद इलैका तरफुक, मैं वो तख्त ले आता हूँ कबल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे, यानी आंख झपकने से पहले मैं तख्त को हासिल कर देता हूँ। अब ये शख्स कौन था, इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। ताहम सही जवाब और सही बात यही है कि वो इंसान ही था। उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, और ये शख्स आसमानी किताबों का आलिम था। निहायत नेक और साहिब करामत आदमी था। बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये शख्स जो है सिद्दीकीन में से था। बाज कहते हैं कि आंख झपकने में तख्त हाजिर कर देना सूफिया किराम की इस्लाह के मुताबिक तसरुफ था, जिसका ताल्लुक अमलियात से होता है। तो बाज लोग ऐसे ऐसे अमल करते हैं जिनकी वजह से बाज औकात नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अमलियात के जरिए बीमारी को भी सलब किया जा सकता है। बाज तावीज करते हैं, बाज कलाम पढ़ के फूंक मारते हैं, जिसका फौरन असर हो जाता है। बाज लोग सांप के कांटे का दम करते हैं, जिससे जहर का असर जो है फौरन खत्म हो जाता है। बात समझ आ गई? तो बहरहाल ये आसिफ बिन बरखिया जो था, नेक आदमी था, आसमानी किताबों का इल्म रखता था, और उसके पास इसमें आजम का इल्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि अल्लाह ताला के अस्माए पाक में ऐसे नाम भी है कि इज़ा दुइया बिही अजाबा व इज़ा सुइला बिही आता, कि जब कोई शख्स किसी ऐसे नाम के साथ अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। जब कोई चीज़ तलब करता है तो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो बात फरमाते हैं कि उस आलिम किताब शख्स ने इसमें आजम के जरिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने बल्कि इसका तख्त फौरन हाजिल कर दिया। तो इसमें आजम को किसी खास इसम के साथ मुतय्यन नहीं किया गया, इजमाली तौर पे ही बताया गया है कि ये फलां कलिमात में पाया जाता है। ये ऐसे ही मुबहम रखा गया है जैसे लैलतुल कदर और जुम्मे के दिन कबूलियत दुआ का वक्त मुबहम रखा गया है, ताकि मुतलाशियान हक खुद जो है उसकी जगह तलाश करे। चुनांचे बाज उसे या हय्यु या कय्यूम में बताते हैं, बाज या जल जलाली वल इकराम में, और बाज सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पे महमूल करते हैं। तो बहरहाल इसमें आजम के पढ़ने के बाद बाद शराइत भी है। इसमें आजम के पढ़ने के लिए बाद शराइत है। मसलन ये कि अकीदत सही हो, रिस्क हलाल हो, इंसान पूरी दिल जमाई के साथ अल्लाह के सामने आजिजी और न्याजमंदी का इजहार करते हुए पढ़े, तो उसके असरात जो है ज़रूर जो है ज़ाहिर होंगे।
تو बहरहाल इस बात पे सब मुत्तफिक है कि अगर नबी के हाथ पे कोई खर्क आदत बात जाहिर हो तो वो मुआजिजा कहलाती है। अगर किसी वली के हाथ पे जाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। नीज जो ऐसी चीज ही की मौजूदगी में उम्मती के हाथ पे जाहिर हो वो नबी की इत्तिबा और उसकी बरकत से होगी। मुआजिजा और करामत इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का फेल होता है जिसे वो इंसान के हाथ पे जाहिर कर देता है। आमतौर पे मुआजिजा या करामत गैर इख्तियारी चीज होती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी वक्त किसी को कोई मुआजिजा या करामत अता कर दे, हस्ब जरूरत जाहिर करने का इख्तियार दे दे तो ऐसा भी मुमकिन है। इसकी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के मुआजिजात है जिन्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया और हस्ब जरूरत फिरौन के सामने जाहिर करने की इजाजत भी मरहमत फरमा दी थी। तो बहरहाल मुआजिजा या करामत अल्लाह ताला का फेल होता है, न कि किसी बंदे का। कुरान मजीद में सराहतन मौजूद है, वमा कान लिरसूल अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा कान लिरसूल अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह। ये किसी रसूल के इख्तियार में नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई निशानी पेश कर सके, मगर अल्लाह के हुक्म से। तमाम मुआजिजात और करामत अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे से ज़ाहिर होते हैं। कोई नबी या वली जब चाहे अपने इख्तियार से ऐसा नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये शख्स जो है साहिब करामत था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उसकी हैसियत मौजिज़े की थी। आप खुद भी अल्लाह ताला की बारगाह में से दुआ कर सकते थे, मगर अहले सबा को ये बावर कराना मकसूद था कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुत्तबे ऐसा कर सकता है तो आपकी हैसियत तो बहरहाल उससे आला और अरफा है। साहिब तफसीर मजहरी और बाज़ दीगर असहाब फरमाते हैं इल्म मिनल किताब, इससे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुराद है। लेकिन सही बात वही है जो मैंने अर्ज कर दी, ये काम आसिफ बिन बरखिया के जरिए हुआ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर कामिलुल ईमान मुत्तकी परहेजगार और साहिब करामत शख्स था। फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त बल्कीस को अपने सामने मौजूद पाया, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, कहने लगे ये मेरे परवरदिगार के फजल से है कि अल्लाह ताला ने मेरे एक साथी के हाथ पे ये काम जाहिर कर दिया। असल बात यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस माफौकल आदत को ना अपना कमाल जाहिर किया, ना आसिफ का और ना किसी फौज का, बल्कि इसे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। फिर खुद ही फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पे ये मेहरबानी इसलिए की है लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, कि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ या ना शुक्रगुजारी करता हूँ। हकीकत ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कदम कदम पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से भी फरमाया था, इअमलू अला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर। ए दाऊद अलैहिस्सलाम के घर वालों, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, मगर मेरे बंदों में शुक्र अदा करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो बहरहाल अंबिया का ये खानदान अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा, वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, कि जो कोई शुक्र अदा करता है तो उसका फायदा खुद उसको होता है। तो उसका फायदा खुद उसकी जात को होता है, अल्लाह ताला को तो उसकी जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया अदा किया जाए तो अल्लाह ताला राजी होता है। उसका ऐलान है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, शुक्र अदा करोगे, तो मैं मजीद इनामात से नवाज दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। नाशुक्री के नतीजे में अल्लाह ताला की नाराजगी और आफतें और मुसीबतें आती है। लिहाजा अल्लाह ताला का हर हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए।
فرمایا کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروردگار تو اس شکریہ اور تعریف سے مستغنی ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہر حالت میں تعریفوں والا ہے، بڑا ہی عزت والا ہے۔ تو اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اس کی تعریف کی، اور پھر شکریہ کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔ باقی انشاءاللہ قال نکروا لها آیت نمبر 41، اس کی تفسیر آئندہ پھر کو پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔